Hare Krishna, Monisha ji. Hare Krishna Radhika ji, Om Shanti. Am I audible? Yes, absolutely clearly. Am I clearly audible to you? Yes, clearly audible. कैसे हैं आप? How are you feeling? Great. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके and thank you so much to Satvik Movement for giving this wonderful opportunity of connecting to Satvik community. Highly grateful. It's a wonderful day. It's a very special day. This is the first time that we are doing something like this, and we are very, very excited. The entire team is very excited, and all our dearest community members are very excited to be meeting you. Same here. So let us start by talking about what really is Satopradhan vision and what was your inspiration to begin this movement? What is the platform all about? We would really, really like to know. जी सतोप्रधान विजन एक humble initiative है by a group of spiritually inclined individuals for the creation of a perfect, happy, healthy and disease-free world जहाँ पे human souls live in perfect harmony with each other as well as with mother nature. जो वर्ड सतोप्रधान है ये स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि ये वो शब्द है जो डायरेक्टली स्वयं परमपिता परमात्मा ने यूज किया है टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल अपकमिंग वर्ल्ड जिसे हम सत्युग या हेवन के नाम से भी जानते हैं. So driven by Supreme Father, Supreme Soul's loveful guidance and grace, Satopradhan Vision basically एक exclusive platform है for providing all the necessary resources जो लोगों को help कर सके to consistently follow सात्विक lifestyle over a long period of time. जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल मेजॉरिटी फैमिलीज में कोई ना कोई चैलेंजेस तो जरूर हैं, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल. And the root cause of majority of these challenges is that we have drifted away from natural ways of living and being. हम जो natural है उसको भूल गए हैं. तो इसीलिए हमें ये realize करना बहुत important है कि in order to change our external world, that is संसार, we need to first work on changing our sanskars, that is impressions. So this is what we are exactly working on. We at Satopradhan are here to help everyone in their journey of sanskar parivartan, that is transformation of old and unhealthy belief systems and habits. तो सतोप्रधान विजन में बेसिकली दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं. पहला है रेजिंग अवेयरनेस अमंग पीपल टू हील देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल इलनेसेस नेचुरली थ्रू सात्विक लाइफस्टाइल एज वेल एज राजयोगा मेडिटेशन. And second objective is providing all the necessary resources that people require during their health transformation journey to make it very easy from them to bring their learnings into actions. तो इस तरह के जो सात्विक लाइफस्टाइल रिसोर्सेज हैं वो हम अपने ऑनलाइन स्टोर satopradhan.com से प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी वेबसाइट है. वहां पर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. पहला ऑर्गेनिक होलसम ग्रोसरी, दूसरा इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स और तीसरा योगिक होम गार्डनिंग एसेंशियल्स. इसके अलावा हम कुछ फ्री सर्विसेज भी ऑफर करते हैं फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस, जैसे कि फ्री 7 days राजयोगा मेडिटेशन कोर्स एंड फ्री गाइडेंस फॉर सात्विक लाइफस्टाइल. सो दिस इज व्हाट सतोप्रधान विजन इज ऑल अबाउट एंड ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं. तो इन सर्विसेज के अंदर जो आपने बताया there are 3 categories. So can you give us a brief idea कि इन categories में क्या क्या आता है so that the community knows अगर मेरे को ये चाहिए I can go to Satopradhan straight away. जी बिल्कुल. तो पहली कैटेगरी जो है ऑर्गेनिक होलसम ग्रोसरी, उसमें जो भी हम सात्विक लाइफस्टाइल में सात्विक फूड के अंदर स्टडी करते हैं वो सब ऑल्टरनेटिव्स जो हमें हेल्दी ईटिंग के लिए चाहिए वो सब 100% प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल फ्री जो रिसोर्सेज हैं ग्रोसरी के वो अवेलेबल हैं इस सेक्शन के अंदर. फिर सेकंड इको फ्रेंडली गुड्स, इसमें जो भी हमारी रूटीन की चीजें हैं जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं या जो इको फ्रेंडली चीजें नहीं हैं उनके कॉमन ऑल्टरनेटिव्स, तो वो सारे इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स में अवेलेबल हैं. और तीसरा योगिक होम गार्डनिंग, ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो लोगों को घर पे अपना हाईली प्राणिक सात्विक फूड कैसे ग्रो करना है उसमें हेल्प करते हैं. सो दीज आर द 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज. Very nice. अच्छा ये बताइए that why did this mission really start? So what was your journey in terms of getting in touch with Satvik and learning the knowledge of the Satvik lifestyle and then getting so inspired by it that you felt, oh my God, this is the mission that we need to take forward. So can you tell us a little bit about where it all began? जी डेफिनेटली. तो ये जून 2019 की बात है जब हम सात्विक मूवमेंट द्वारा गुड़गांव में ऑर्गेनाइज्ड
एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप अटेंड करने गए थे और ऑलरेडी हम काफी महीनों से पहले से ही 6-7 मंथ से सात्विक मूवमेंट की वीडियोस को देखकर 80% लाइफस्टाइल तो फॉलो कर रहे थे, बट वर्कशॉप में सुभा जी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उनसे मिलके उनकी ब्यूटीफुल ऑरा के कांटेक्ट में आके हम 100% कमिटेड हो गए कि हमें इसे और अच्छे से एक्यूरेटली रिलीजियसली फॉलो करना है। तो हमने वापस आके बहुत एक्साइटमेंट से सारी तैयारी शुरू कर दी। इनफैक्ट हमने अपना एग्जिस्टिंग होम और ऑफिस भी शिफ्ट किया टू नेचुरल सराउंडिंग्स, जहाँ पे हम सात्विक लाइफस्टाइल के सारे 10 स्टेप्स बहुत रिलीजियसली अच्छे से कर सके। एक कंप्लीट सात्विक किचन सेटअप की हमने एंड बहुत एक्साइटमेंट से अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कर दी। तो जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया, हमने अपने पर्सनल और अपनी फैमिली मेंबर्स के बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस देखे। हमने अपने सामने कितनी अलग अलग प्रकार की डिजीजेस हील होते हुए देखी, मेडिसिन छूटते हुए देखी। ये सब देखकर हमारा विश्वास और पक्का होता गया कि बहुत ऑथेंटिक नॉलेज है। तो ऐसे ही हम इसे फॉलो करते गए, बट फिर कुछ चैलेंजेस आने लगे और वो चैलेंजेस की हमने सोल्यूशंस ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जब सोल्यूशन नहीं मिला बाहर, तो वी डिसाइडेड टू क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर आवरसेल्व्स एंड एवरीवन एल्स। And this is how the deep desire to find the solutions that we faced during our healing journey, उन्हीं से सतोप्रधान विजन का बर्थ हो गया, and this was the biggest inspiration to start it. Wow, you are a living example of the saying where there is a will, there is a way. So जी, हमारे मन में बहुत बार ऐसे things come after we watch a video or after we attend the lifestyle workshop. हमें लगता है ओ बट मेरे घर में तो धूप नहीं आती, अरे बट मेरे को ये वाला खाना कहाँ से मिलेगा, मेरे को तो ये तो अवेलेबल ही नहीं है. एंड सो द माइंड मेक्स सो मेनी एक्सक्यूजेस दैट out of 100% we end up following only 50%. But you have shown us that if you really want to do something with all your heart, you will find a way, not only for yourself but for even other people. So very beautiful journey. तो जब आपने follow करना start किया, what were the small challenges that you faced because of which you felt अच्छा ये चीज हमें अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही है, and what substitutes did you find or how did you start to grow them on your own? Can you tell us a little bit? जी, sure. So during our journey of health and healing, we had a really tough time finding authentic सात्विक lifestyle resources. जैसे कि हमें सात्विक नॉलेज गेन करने के बाद ये तो पता लग गया कि हमें ऑर्गेनिक होलसम ग्रेन्स खाने हैं, लेकिन अब मार्केट में इतने ब्रांड्स में से कौन से वाले जो ग्रेन्स है वो ऑथेंटिक ऑर्गेनिक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देन ऐसे का क्वेश्चन था कि जैसे हमें प्योर हर्ब्स लेने हैं, प्योर कॉन्डिमेंट्स यूज करने हैं, अब मार्केट में इतनी पैकेज्ड आइटम्स हैं, उनमें कोई हार्मफुल फ्यूमिगेशन टेक्निक्स तो नहीं यूज की गई शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए? ये हाउ विल वी फिगर आउट? ऐसे ही हमें आर्टिफिशियल डिओड्रेंट्स या नेचुरल जो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस हैं उनकी जगह नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स यूज करने हैं, बट कैसे पता लगेगा कि मार्केट में मिलने वाले कौन से ऑयल्स 100% प्योर, पोटेंट एंड अनएडल्टरेटेड हैं? बेसिकली हमारे मन में ये आता था कि सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करने का या सात्विक किचन सेटअप करने का सारा सामान एक ही जगह पर कहाँ मिलेगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपना सात्विक फूड खुद घर पे ग्रो करने के रिसोर्सेज और गाइडेंस कैसे मिलेंगे? तो ऐसे सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते करते ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे और हमसे ये नॉलेज सुन के इम्प्लीमेंट करने वालों के माइंड में चलने लगे, एंड हम समझ गए थे कि इनका सोल्यूशन ढूंढे बिना लॉन्ग टर्म तक सात्विक लाइफस्टाइल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना फिजिबल नहीं होगा। कितने लोगों को तो हमने देखा जो हमारे साथ ऑलरेडी गिव अप ही कर चुके थे कि इतना रिसर्च कौन करे कि कहाँ पे क्या मिलता है। सो ऐसे ही ये स्टार्ट हुआ कि हमने फिर फिगर आउट करना शुरू किया कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन आउटसाइड, क्योंकि हमने इतना सर्च किया, हमें एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला जहाँ के मेंबर्स खुद भी सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हो एंड साथ में ऐसे सात्विक लाइफस्टाइल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जो सात्विक मूवमेंट द्वारा गाइडेड ही स्ट्रिक्ट सात्विक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। इतना स्ट्रिक्ट कोई भी प्लेटफॉर्म बाहर अवेलेबल नहीं था, सो वी डिसाइडेड टू बी द सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर इट, ताकि हमारे जैसे बाकी कम्युनिटी मेंबर्स को फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं आए। सो इसी तरह सत्यप्रधान विजन केम इनटू एस्टैब्लिशमेंट और हमने अपनी जर्नी में ये रियलाइज किया कि अगर हमें सात्विक लाइफस्टाइल को लंबे समय तक इजीली फॉलो करना है तो 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करने चाहिए। पहला है कंजम्पशन ऑफ प्योर सात्विक फूड, सेकंड है यूजेज ऑफ क्रूअल्टी फ्री एथिकली सोर्स्ड इको अल्टरनेटिव्स, थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ केमिकल फ्री मिनी एडिबल गार्डन एट होम, एंड फोर्थ है सर्विंग नेचर एंड ऑल द अदर सोल्स
through very pure, positive and powerful vibrations, जिसको हम सात्विक vibrations या सात्विक mindset कहते हैं. So basically with God's grace and guidance, सत्व प्रधान विजन एग्जैक्टली लोगों को हेल्प करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ कि वे चारों एस्पेक्ट्स अपने लाइफ में बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सके. Such a beautiful and pure intention, Monisha ji. It is coming from so much love. It is coming from a space of service, that it is not just for me, but it is for the entire world. And that is what makes Sattva Pradhan so special, and also that it is just like an extended family of Sattvic movement. Even though you all are in Amritsar, but you are always connected with us as just like an extended family. बिल्कुल, जिस दिन से हमने वर्कशॉप अटेंड की हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं. वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन कि हमारे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना कुछ किया, अब हम कैसे सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करें कि इकट्ठे कम्युनिटी मेंबर्स को सपोर्ट करें. सो दिस इज व्हाट वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन. कैन यू टेल अस इन अमृतसर आपकी किस तरह की कम्युनिटी है हु इज फॉलोइंग द सात्विक लाइफस्टाइल? अमृतसर में लॉकडाउन से पहले तो हम यहाँ पे फ्री मेडिटेशन एज वेल एज हेल्थ क्लासेस ऑर्गेनाइज करते थे. And many people used to come and attend, और वो सात्विक लाइफस्टाइल रिसोर्सेज जब उनको साथ ही मिल जाते थे तो बहुत इजीली वो इम्प्लीमेंट करने लग जाते थे. फिर लॉकडाउन के कारण हमें वो फिजिकल मिलना तो कम करना पड़ा, बट अब जितनों को भी पता है दे बिकम वेरी एक्साइटेड. जैसे कोई सात्विक मूवमेंट को फॉलो कर रहा है और वो हमारे पेज को फॉलो करता है और उन्हें पता लगता है कि अरे आप अमृतसर से हैं, दे आर लाइक ये तो कुछ ब्लेसिंग मिल गई हमें. वो बहुत खुश होते हैं. लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली क्योंकि हमने इतना क्लोज सिस्टम रखा है, अब हमसे आके कोई मैदा मांगेगा या ऑर्गेनिक कुछ और चीज मांगेगा जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो वो उनको नहीं मिलेगी. तो हमारी कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. सो इट इज नॉट फॉर एवरीवन बट जस्ट फॉर सात्विक कम्युनिटी, ताकि हम वो ऐसा क्रिएट करें कि लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़े, हम नहीं चेंज करें कि उनकी डिमांड क्या है. सो हमने उस तरह डिजाइन किया है इसे बेसिकली. वाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी about our path, about our mission, for it to reach many people. Right. So you've spoken about yogic gardening, home gardening. तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है हम लोगों के लिए, जो लोग सिटीज में रहते हैं, जो माँ प्रकृति से इतना दूर चले गए हैं, living in concrete jungles. It is such a new and alien concept. So can you shed a little light on what does this really mean? जी, योगिक होम गार्डनिंग एक इनिशिएटिव है to help and encourage and educate people to grow their own food at home, not just organically but in a sattvic way, using very natural, chemical free, ethically sourced resources. And इसमें जो स्पेशली वर्ड योगिक हम यूज करते हैं, ये इसलिए है, ये सिग्निफाई करता है the usage of pure, positive and powerful vibrations to nurture the plants. कि हम सिर्फ एक्सटर्नल उन रिसोर्सेज पे ही नहीं फॉलो कर रहे, हम सात्विक वाइब्रेशंस भी क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो उन प्लांट्स की नर्चरिंग करें, ताकि वो ट्रूली हाईली प्राणिक सात्विक फूड हो. तो इसमें बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि वी ऑल हैव हर्ड गार्डनिंग इज द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड. सो गार्डनिंग इज अ ग्रेट वे ऑफ रिफ्रेशिंग आवरसेल्व्स एंड सर्विंग मदर नेचर while expressing love and gratitude for all the gifts that mother nature has given us. तो जब हम सात्विक लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम उसमें यही बात करते हैं कि वी वांट टू ब्रिंग मैन क्लोजर टू नेचर. जैसे हमारे सात्विक मूवमेंट की टैगलाइन भी यही है ना, ब्रिंगिंग मैन क्लोजर टू नेचर. तो हमें लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वे इसका है होम गार्डनिंग, क्योंकि जब हम प्लांट्स को खुद घर पे ग्रो करते हैं, वी डेवलप अ वेरी इमोशनल बॉन्ड विद देम. हमें अपना भोजन हमारी आंखों के आगे ग्रो करते हुए दिखता है, तो वो इतना एक्साइटिंग होता है. एंड वी फील अ ग्रेट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट कि अरे इसे मैंने इतने प्यार से सींचा था और आज ये खाने लायक हो गया है. सो वो प्यार ही अलग है, वो माँ प्रकृति के साथ जो ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत ही डिफरेंट है. इसके अलावा हमने ये रियलाइज किया कि होम गार्डनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज वो कुछ हद तक खत्म हो सके. जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन में हमें याद है कि वी नेवर हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अवर सात्विक मील प्लान्स, इवन दो मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा था, बट हमारे घर पे इतना अच्छा सप्लाई ऑफ लीफी ग्रीन्स था कि वी ऑलवेज हैड इनफ फॉर आवर सात्विक जूसेस एंड सैलेड्स. और एक्चुअली वही टाइम है, लॉकडाउन में हमने रियलाइज किया कि अगर सात्विक लाइफस्टाइल किसी को सच में कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ मिनी एडिबल गार्डन एट होम. एंड उसी के बाद से सत्व प्रधान विजन में इस डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया.
तो जब हम खुद से उगा रहे हैं कुछ, when we are nurturing it and when we are seeing it grow, of course you developing a very beautiful relationship with that food. At the same time इतनी मेहनत से बनाया है कि अभी इसको कम खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे. Maybe we are reducing the quantity also now that you're growing it on your own. But when you began to grow your own food, what were the challenges that you faced, and because you learned from this experience, how have you made this how have you made this easy for the community to do? अगर आज हमको जितने भी लोग सुन रहे हैं, कल से वो ऐसा क्या कर सकते हैं that they can start growing their own food? जी, तो जितने भी हमें अभी सुन रहे हैं उन सबको हम यही कन्वे करना चाहते हैं कि यू डोंट रिक्वायर अ ग्रीन थंब टू ग्रो योर ओन प्लांट्स. आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल. तो जैसे स्टार्ट करने के लिए आप स्प्राउट्स या माइक्रोग्रीन से शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत कम एफर्ट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं. एंड प्लस दे आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली सात्विक डाइट. जब आप स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने से कन्वीनियंट हो जाएं, उसके बाद आगे मूव ऑन कीजिए. नेक्स्ट यू कैन स्टार्ट विद लीफी ग्रीन्स, क्योंकि लीफी ग्रीन्स को भी इतना केयर की जरूरत नहीं है और ये 35 to 40 डेज फ्रॉम सोइंग के बाद हार्वेस्ट किए जा सकते हैं. और ये हमारे सात्विक जूसेस, सात्विक सैलड्स में बहुत यूज होते हैं. तो जब आप इतने से कन्वीनियंट हो जाएं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े. इसके बाद आप क्यूलिनरी हर्ब्स स्टार्ट कर सकते हैं. देन कॉमनली ग्रोन विंटर एंड समर वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग एडिबल फ्लावर्स एट होम, इजी टू ग्रो फ्रूट्स. लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े. इतना बड़ा टारगेट मत लेके चलें कि मुझे घर की सारी सब्जी खुद अभी फर्स्ट स्टेप पे उगानी है, क्योंकि वो आप गिव अप कर देंगे. आप बहुत छोटा शुरू करेंगे और आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स मिलेंगे. तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो आपको इंस्पायर करेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा टू इन्वेस्ट मोर टाइम एंड एनर्जी टू द एक्सपेंशन ऑफ योर होम गार्डन. सो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल. सबसे पहले ये चीज. दूसरा, हमने काफी सारे जो हमें स्ट्रगल्स फेस करने पड़े उसको ध्यान में रखते हुए, to make home gardening easy, enjoyable and very accessible for everyone, we have developed a wide range of thoughtfully planned home gardening essentials, जिसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. जैसे कि फैब्रिक ग्रो बैग्स हमने डेवलप किए एज एन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक प्लांटर्स या हेवी क्ले पॉट्स, जिनको घर में उठाने में बहुत दिक्कत आती है शिफ्ट करने में, क्योंकि यूजुअली हाउसवाइव्स हैव टू मेंटेन द गार्डन, सो दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. उसके बाद हमने ऑर्गेनिक देसी सीड्स का एक पूरा सीड बैंक रेडी किया है जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एज एन ऑल्टरनेटिव टू हाइब्रिड जीएमओ सीड्स, क्योंकि नॉन हाइब्रिड देसी सीड्स बहुत मुश्किल से ही अवेलेबल हैं और इतना टाइम लगता है ऑथेंटिक सोर्सेज को ढूंढने में. ऐसे ही तीसरा, हमने प्रीमियम क्वालिटी टूल्स एंड एक्सेसरीज, स्पेस सेविंग रैक्स एंड स्टैंड्स, वेल बैलेंस्ड पॉटिंग मीडिया, वो सब इकट्ठा करके ट्रायल्स कर करके जो बेस्ट है वो अवेलेबल करवा के रखा है कि आपको सिर्फ यूज करना है डायरेक्टली. तो जितना आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे उतना आपका जो एफर्ट है वो कम लगेगा. तो आप अच्छे रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट कीजिए ताकि आपको इतना कम्बरसम नहीं लगे. और तीसरा, जो ऑलरेडी पॉपुलर गार्डनिंग प्रोसेसेस हैं, हम कांस्टेंट ट्रायल्स करते रहते हैं उनको और सिंप्लीफाई और कन्वीनियंट करने के लिए. जैसे कि रिसेंटली हमने स्प्राउट्स ग्रो करने के लिए एक यूनिक स्प्राउटिंग कैप एंड साथ में स्प्राउटिंग जार इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हमने पर्सनली फील किया कि जो स्प्राउटिंग जार मेथड है ये सबसे इजीएस्ट, सबसे हैसल फ्री मेथड है ऑफ ग्रोइंग स्प्राउट्स एट होम आउट ऑफ ऑल द मेथड्स जो हमने 2 साल में ट्राई किए हैं. तो इसीलिए इस तरह अभी हम माइक्रोग्रीन्स पे काम कर रहे हैं कि माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के बहुत मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से अभी तक हमें इजीएस्ट लग रहा है बॉटम वाटरिंग मेथड. तो हम उसको कॉन्स्टेंटली उस पर ट्रायल्स कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम वो इंट्रोड्यूस करेंगे माइक्रोग्रीन किट अपनी वेबसाइट पर. सो कॉन्स्टेंटली हम जो इजी प्रोसेसेस हैं उनको भी और इजी कैसे करना है ताकि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को कभी भी लेजीनेस नहीं फील हो, कभी भी वो नहीं लगे कि अरे यार ये तो क्या, ये कितना कुछ चेंज करना पड़ेगा सात्विक लाइफस्टाइल के लिए. तो उनको हम कॉन्स्टेंटली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते रहते हैं. Your dedication is so beautiful, Monisha ji, to constantly improve, to constantly grow, to make things easier for the community. And I think this energy transmits in everything that you do, and it reaches the community. So I think Satupradhan is a very, very special place because each person in Satupradhan is so special. बिकॉज सतप्रधान का सोर्स ही बहुत स्पेशल है ना, राइट फ्रॉम सात्विक मूवमेंट ही तो ओरिजिनेट हुआ है. सो दैट द एनर्जी इज एमिनेटिंग थ्रू अस. Absolutely. So Monisha ji, these days people face the challenge, they feel that eating healthy or eating sattvic can be quite expensive. Certain things are not so easily available, and if they are available, they are
quite unaffordable. So I'm Right. sure that these challenges have been faced by many people. Do you think there is truth in this, and have we taken any steps to make this kind of food more accessible? जी राधिका जी, जो ये पॉपुलर बिलीफ है कि ऑर्गेनिक हेल्दी ईटिंग जो है ये अफोर्डेबल नहीं है, ये बिलीफ राइट है टू सम एक्सटेंट, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि राइट टेक्निक ऑफ हेल्दी ईटिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं एंड जो हेल्दी ईटिंग को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हैं, रादर एक एक्सपेंडिचर की तरह समझ रहे हैं। जैसे कि हमने जो फेस किया वो ये है कि आज क्या है, ऑर्गेनिक फूड ये जो टर्म है एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है, जो कि बिलीव किया जाता है कि सिर्फ अपर क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। बट ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम खाने से रिलेटेड कुछ बहुत कॉमन गलतियां कर रहे हैं। जो पहला है, हम राइट टेक्निक ऑफ ईटिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खा रहे हैं। एंड सेकेंडली, हम सही विधि से नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको यही गाइड करते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग अटेम्प्टिंग टू बाय ऑर्गेनिक फूड और लुकिंग आउट फॉर हेल्दी ईटिंग, आप सबसे पहले तो सात्विक मूवमेंट की हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप अटेंड कीजिए। बिकॉज जब तक आपको हेल्दी ईटिंग का टेक्निक नहीं पता है, हमने पर्सनली खुद फील किया राधिका जी कि जब हमने सात्विक फूड को बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू किया, सात्विक फूड कंज्यूम करना शुरू किया, तो हमारा खाने की इनटेक बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गई। क्योंकि पहले हम जो खा रहे हैं डेड फूड खा रहे हैं, न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट फूड खा रहे हैं, जो कितना भी बिंज ईटिंग कर लो संतुष्टता मिलती ही नहीं है। बट अभी जब हम हाईली प्राणिक अपने सात्विक जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, सूप्स ले रहे हैं, तो उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इतने हाईली न्यूट्रिशियस है कि थोड़ा खाने से ही हमें बहुत सारी नरिशमेंट मिल रही है। तो हमारी क्वांटिटी तो सिग्निफिकेंटली कम पहले ही हो जाती है। पहली चीज ये। दूसरा, जैसे कि हमें सात्विक मूवमेंट में, सात्विक लाइफस्टाइल में समझाया जाता है कि हमें माँ प्रकृति के करीब जाना है, तो उसमें सन फूड, एयर फूड, प्राणायाम, सन बेदिंग, सन गेजिंग, बेयरफुट वॉकिंग, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डिपेंडेंस ऑन फिजिकल फूड को कम करने में। क्योंकि हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे हैं, तो हमने ये भी रियलाइज किया कि जैसे जैसे हमने माँ प्रकृति के साथ ये कॉन्टैक्ट बढ़ाया, हमें वो वाली भूख की जरूरत ही कम लगने लगी, क्योंकि इससे भूख पूरी होने लगी। एंड तीसरा, हमें ये लगता है कि लोगों को आजकल बहुत ज्यादा ये बिलीफ सिस्टम हो गया है कि हम अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी नहीं छोड़ें और उसी में ऑर्गेनिक फूड को इंट्रोड्यूस कर दें। मतलब जो दो नावों में सवार होने की कोशिश करते हैं, इन शॉर्ट उनका बजट अपसेट होता है। हमने ये देखा है कि जो कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज ओवर करते हैं, बहुत ही शिद्दत से, बहुत रिलीजियसली शिफ्ट करते हैं, उनका दवाइयों का एक्सपेंस बचता है, हॉस्पिटल्स के खर्चे बचते हैं, लेट नाइट पार्टीज का खर्चा बचता है, आपका बाहर महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का खर्चा बचता है, आपका मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल पे जो आप अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहे हैं वो बचता है। तो वो सब सेव करके हम हेल्दी ईटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसीलिए अभी जो रिसेंटली हमारे सात्विक मूवमेंट के इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट शेयर की गई थी कि ईदर पे योर फार्मर नाउ और पे द फार्मर लेटर, वो बहुत ही एप्ट है इसके लिए। मतलब कि हमें तभी लगता है अगर हम इसे अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं जितने भी हमें अभी लिसनर्स सुन रहे हैं जिनका ये बिलीफ सिस्टम है कि ऑर्गेनिक हेल्दी ईटिंग, सात्विक डाइट इज सिंपली नॉट अफोर्डेबल फॉर अस, उनको सिर्फ ये 3 सजेशंस देना चाहूंगी। पहला, आप हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप अटेंड कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की तो, और स्ट्रिक्टली जिस तरह बताया जा रहा है वर्कशॉप में उस तरह खाना शुरू कीजिए। दूसरा, आप अपने सन फूड और एयर फूड की कंजम्पशन को बढ़ाइए। और तीसरा, सात्विक लाइफस्टाइल को एक रिचुअल की तरह बहुत रिलीजियसली फॉलो कीजिए, मिक्स एंड मैच अप्रोच के साथ मत कीजिए। जब आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे, ट्रस्ट अस, हमारा अपना अनुभव है, आपका बजट अपसेट नहीं होगा। इनफैक्ट मेजॉरिटी चीजें आप इजीली अपने बजट में फिट इन करके फॉलो कर सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया आपने मोनिशा जी, आई एम सुपर सुपर इम्प्रेस्ड। ये कितनी अच्छी बात बोली आपने कि जब बाकी चीजें हम कम कर देंगे तो नेचुरली हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो वी विल हैव टू लर्न टू प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स, क्योंकि बाकी चीजें तो आती जाती रहेंगी, पर हमारा जो ये शरीर है वो तो हमारे साथ जीवन भर रहेगा, जो हमारा मन है वो हमारे साथ जीवन भर रहेगा। तो उसमें अगर हम कॉर्नर्स कट कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट ओके। So we can't make this excuse. We can't make excuses anymore after now that you have taught us so well. तो मोनिशा जी, अगर हम हमारी जो कम्युनिटी है वो हमें बोलती है मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, when they go to a supermarket there are multiple
brands to choose from. Even in organic eating, there are so many brands to choose from. So they get so confused. How can we spot the best possible organic food? Can you share some tips? जी बिल्कुल। अब पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप तो मुझे लगता है ये है, मैं सारा कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे ही बता रही हूँ। तो पहला टिप ये है कि आप सोर्स ऑफ द फूड जरूर चेक करें, क्योंकि सोर्स का जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करता है डिटर्मिन करने में कि उसका जो प्रोड्यूस है, उसका जो सामान है वो कितना ऑथेंटिक है। अगर तो सोर्स का इंटेंशन मनी मेकिंग है, बिजनेस है, तो फिर चांसेस हैं कि कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर उनका जो मोटिव है वो सेवा भाव है, वो ट्रू सर्विस के लिए कर रहे हैं, प्यार के लिए कर रहे हैं, दुआएं कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोड्यूस है वो ऑथेंटिक ऑर्गेनिक ही होगा, वो सच बोलेंगे। तो अब सबसे पहले तो सोर्स के बारे में इतना इतना वेरीफाई आपको रिसोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सोर्स को अच्छे से जानने की जरूरत है कि जहां से आप खरीद रहे हैं, नो देम वेल। तो पहला तो वो। दूसरा कि अपने ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड है वो नॉर्मल केमिकली ग्रोन फूड के मुकाबले तो कुछ महंगा होगा ही। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको वो सेम प्राइस पे मिल जाए। ये जरूर पॉसिबल है कि हम अपना लाइफस्टाइल इतना चेंज ओवर करें कि हम उसको बजट में फिट इन कर लें। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हमें कहीं लगता है कि अरे ये ऑर्गेनिक खाने की चीज तो बिल्कुल मार्केट वाली चीज जितनी सस्ती मिल रही है, मतलब इसको ले लो। वो आपके लिए फैक्टर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट वो आपके लिए डाउटिंग फैक्टर होना चाहिए कि ये इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। सो ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि उसकी कॉस्ट एक फेयर रीजनेबल होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर ऑर्गेनिकली ग्रोन सच में नहीं है। जो लोग कॉस्ट को देख के बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, कम प्राइस है। तीसरा टिप मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं तो यू हैव टू एक्सपेक्ट नॉन यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रोन नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर नेक्स्ट बैच पिछले बैच जैसा ही होगा, क्योंकि प्रकृति में इतनी यूनिकनेस है, इतनी नवीनता है कि हर बार हर क्रॉप की प्रोड्यूस में कुछ अलग ही फ्लेवर है, कुछ अलग ही टेक्सचर है। तो आपको उस नॉन यूनिफॉर्मिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, आप ऑर्गेनिकली ग्रोन अनपॉलिश्ड दाल लें, अगर हम, वो दाल देखने में इतनी डल लुकिंग होती है और उसके जो अलग अलग दानों के साइज है वो सब अलग अलग साइजेस की, वो देखने में एकदम अपीलिंग बिल्कुल नहीं लगती। और उसी की जगह अगर हम केमिकली ग्रोन पॉलिश दाल लें, वो इतनी सुंदर चमकती हुई ब्राइट, सारे दाने एक जैसे, तो हमें देखने में लगता है यार कितनी सुंदर है। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता, वो मशीन मेड नहीं है। तो इसलिए एक्सपेक्ट नॉन यूनिफॉर्मिटी। जब आप देखें कि कुछ डाल डाल सा लग रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, टेक्सचर ऊपर नीचे है, वो सच में ऑर्गेनिक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में क्योंकि हम कहते हैं कि केमिकल्स नहीं यूज किए गए, तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी यूज नहीं होते, हार्मफुल फ्यूमिगेशन टेक्निक्स भी यूज नहीं होती शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए। तो कभी भी अगर आप ऑर्गेनिक सामान खरीदें और वंस इन अ वाइल पैकेट ओपन करते टाइम आपको कोई उसमें बग दिख जाए या पेस्ट दिख जाए, प्लीज कंसिडर इट एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका मतलब वो सच में लिविंग फूड है, डेड फूड नहीं है। कई लोग इतना उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये कैसे दिख गया है, तो साफ सुथरा ऐसा बिल्कुल क्लीन भोजन होना चाहिए, इसका मतलब उसमें पेस्टिसाइड्स डले हैं। हमारे मापदंड ही कुछ डिफरेंट है एक्चुअली परखने के। तो हमें ये चेक करना है कि अगर उसमें बग है, अगर मेरे पैकेट में एक आधा कुछ निकल भी आया, आप सीव करके खुश होकर यूज कीजिए कि अरे वाह ये तो लिविंग फूड है, कंपनी जो क्लेम करती है वही है। इनफैक्ट अगर ज्यादा है तो आप सप्लायर को बोल सकते हैं रिप्लेस करने के लिए, बट ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि दैट इट इज कम्प्लीटली ओके। एंड फिफ्थ टिप ये है कि जो भी सप्लायर अगर वो जेन्युइनली ऑर्गेनिक ऑथेंटिक प्रोड्यूस दे रहा है तो वो कभी भी अपने वर्कफ्लो को छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। आप कितना भी क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, दिल बी रेडी टू आंसर, दिल बी रेडी टू बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, वो कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी होंगे और 100% एक्सीलेंट आपको आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि वो सच में आपसे पैसा नहीं कमाना चाहते, आपका ट्रस्ट विन करना चाहते हैं ऑर्गेनिक ईटिंग के लिए। तो इसलिए आप ये 5 टिप्स यूज कर सकते हैं जब भी आप बाहर कहीं शॉपिंग के लिए जाएं तो ऑर्गेनिक फूड परखने के लिए। फैंटास्टिक टिप्स मनीषा जी। हम अपने किचन में भी देखते हैं, इफ वी कीप अ बोल ऑफ अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस एंड इफ वी कीप पॉलिश्ड व्हाइट राइस, द insects will come on the brown rice because that is pure, that is coming straight from mother nature. Even ants and insects don't want the white rice. बिल्कुल। Very, very nice, very beautiful. So when you source for the platform, for Satapradhan Vision and the website, when you source, how do you source these products, your dal and your chawal and your jaggery? How do you source this?
जी, सबसे पहले तो वी स्टार्ट विद रिसर्च। जैसे कोई रिसोर्स फाइनल हुआ, लेट्स से जैगरी पाउडर, अब इट इज फाइनलाइज्ड कि हमें ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर रखना है वेबसाइट पे, तो हम रिगरस रिसर्च करते हैं ऑल इंडिया कितने फार्मर्स हैं, कितने जगह हैं जहाँ पे ये ऑर्गेनिक बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, वो सबकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। फिर उनको पर्सनली वन ऑन वन कॉन्टैक्ट करके उन सबसे सैंपल्स मंगवाए जाते हैं। फिर उन सब 10, 15, 20 सोर्सेज से सैंपल्स आने के बाद हम यहाँ पे ट्रायल्स रन करते हैं कि उनके डिफरेंट टेस्ट करते हैं कि कौन सा जैगरी पाउडर कैसा टेस्ट कर रहा है, कॉस्ट कितना है उसका, टेक्सचर कितना है, हमारी सात्विक रेसिपीज में कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो वो सब टेस्टिंग के बाद जो कॉस्ट एंड क्वालिटी को वे करके जो बेस्ट स्टैंड आउट करता है, फिर हम उसकी सोर्सिंग करते हैं। एंड हमारा जो पैकेजिंग स्टोरेज सारा यूनिट है वो इन हाउस ही है। हम पैकेज किया हुआ मटेरियल कहीं से नहीं लेते, टू एंश्योर कि हमारी आंखों के सामने हम पैक करें, उसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं हो। इसलिए बहुत ऑफन जिन्होंने भी हमारे से रिसोर्सेज खरीदे उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि वंस इन वाइल वो जब पैकेट खोलते हैं तो उनको कभी कभी कोई बग दिख जाता है। तो इसका मतलब यही है कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कोशिश करते हैं कि हम जो लोगों का टाइम है ये ढूंढने में कि बेस्ट कहाँ मिलेगा, क्योंकि कहीं पे बेस्ट शक्कर मिल रही है, किसी फार्मर का कुछ और प्रोडक्ट बेस्ट है, किसी का कुछ और बेस्ट है, हम बेसिकली उन सबको अलग अलग जगह से ढूंढ कर एक जगह पर कंपाइल कर रहे हैं जहां पे लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके कि अगर यहाँ पर है ना तो हमें कोई ट्रायल टेस्टिंग कोई रिसर्च नहीं चाहिए, वो सब काम ऑलरेडी डन है, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हम सात्विक फूड खाएंगे और यूज करना है बस। तो बेसिकली हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो मनीषा जी, कितना समय लगता है ये पूरी प्रोसेस में? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू फिगर आउट ओके दिस इज द रिसोर्स वी नीड एंड देन फाइनली इट गोइंग अप ऑन योर वेबसाइट फॉर सेल? राधिका जी, इसमें तो बहुत ही वेरिएशंस हो जाते हैं कई बार, मतलब इट टेक्स समवेयर अराउंड 1 to 2 months टू इवन 1 year। वी रिमेम्बर ये जो स्प्राउटिंग का जार और ये सब डेवलप करने में हमें इट्स बिन मोर देन 10 months, जब से हम इसको माइंड में जब से है, जब से उस चीजों को प्लान करने में, वेबसाइट में लॉन्च करने तक जितना समय लग गया है। एंड अभी भी माइक्रोग्रीन्स का चल रहा है तो हमें ऑलरेडी 5 months हो चुके हैं रिसर्च ट्रायल टेस्टिंग करते हुए, बिकॉज हम ये नहीं चाहते हम हरिडली रिजल्ट से खुश होकर कुछ लॉन्च कर दें और फिर किसी को कुछ और तरह यूज करते हुए उनको प्रॉब्लम आए। वी वॉन्ट टू बी सो श्योर कि अगर सतो प्रधान कुछ कह रहा है तो इसका मतलब वो 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है, देयर इज नो वे लेफ्ट एट ऑल। तो इसलिए हम ट्रायल एंड टेस्टिंग पीरियड हमारा काफी लॉन्ग चलता है। इवन हमारे टीम मेंबर्स वो बेचारे सुबह शाम रात इतना रिगरसली सर्च करते रहते हैं, इस सप्लायर से ये देखना है, इससे ये देखना है, तो बहुत रिगरस टेस्टिंग चलती है। 90% काम ही ये होता है, बहुत वेबसाइट पे सिर्फ 10% पहुंचता है, 90% बैक एंड फोर्स यही लगता है सारा ट्रायल टेस्टिंग में। Wow. So now we can absolutely trust with closed eyes. सतो प्रधान बोल रहे हैं तो इसका मतलब tried and tested, experimented. They're giving us the best possible quality that we can ever ask for. Very nice. So आपने अपनी टीम के बारे में कुछ शेयर किया. At Satvik, we have a very conscious working environment where all of our team members also strive to follow all of the aspects of the Satvik lifestyle. So before we are saying something to our community members, our Satvik team has to be very, very sure that every person is following it, every person is on the same page. So this is the working culture at Satvik. Can you tell us a little bit about the working culture at Sato Pradhan? What does the day of a team member look like? जी राधिका जी, वही अगर हमें कुछ बहुत ही ऐसा करना है जो कन्वेंशनली नहीं हो रहा आजकल, अपने हायर पर्पस से अलाइंड करना है, तो हमें लगता है उसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमने देखा है, हम सब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। हम जैसे ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में थे, जो कि वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हमने पर्सनली राजयोग का मेडिटेशन टेक्निक सीखी थी, और हम सब इंडिपेंडेंटली उसको कई सालों से फॉलो कर रहे थे। तो उसी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के कारण हम धीरे धीरे सात्विक मूवमेंट के कांटेक्ट में आए, हमने इंडिपेंडेंटली सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू किया, एंड बाय गॉड्स परफेक्ट प्लान हम सब एक दूसरे से मिलते गए एंड सतो प्रधान टीम बन गई। सो बेसिकली जो सतो प्रधान टीम है वो सभी मेंबर्स दो चीजों को रेगुलरली फॉलो करते हैं, एक सात्विक लाइफस्टाइल, एक स्पिरिचुअल रूटीन। इन चीजों पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे एक आइडियल डे है एक सात्विक जो यहाँ पे एसवी टीम मेंबर के दिन में, तो वो ऐसा होता है कि डे हेयर स्टार्ट्स एट 3:30 to 4 AM। हम स्टार्ट करके अमृत वेला मेडिटेशन करते हैं। वो अमृत वेला मेडिटेशन में परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होकर उनसे बहुत प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेते हैं कि वो एनर्जी जो हम एक्शंस में फिर अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सके। उसके बाद मेडिटेशन करके
हम जो डिटॉक्स योगा है, जिसमें हम आपकी वीडियो ऑन करके पूरी टीम अपने अपने घर पे वो प्रैक्टिस करती है, सन गेजिंग करते हैं, उसके बाद फिर रेडी होकर हम सन बेदिंग करने के साथ साथ मुरली स्टडी करते हैं। मुरली वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इट्स लाइक गॉड्स लव लेटर, जो हम डेली स्टडी करते हैं, डेली न्यू, जो कि हमें ये बताता है कि परमात्मा हमें क्या सिखा रहे हैं कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो वो हम स्टडी करके उसको फिर अपने पूरा दिन याद रखते हैं कि हमें एक्शंस में उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद अपना मॉर्निंग जूस लेते हैं, प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक लेते हैं, जो कि यूजुअली एश कार्ड जूस होता है। कभी जब एश कार्ड अवेलेबल ना हो तो ग्रीन जूस या कोकोनट वाटर ले लेते हैं। और उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं अराउंड 9:30, एंड उसके बाद ऑफिस में 11 साढ़े 11 बजे ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है सभी के लिए, जिसमें सब फ्रूट्स खाते हैं। उसके बाद लंच में सभी मेजोरिटी सैलड्स ही लेकर आते हैं, क्योंकि सात्विक प्रिंसिपल है कि हमें कुक्ड फूड को 3 से 5 घंटे के अंदर ही खाना है। तो इसलिए टिफिन में हम कुक्ड फूड नहीं लेकर आते, सैलड्स लेकर आते हैं। तो वो सैलड्स कंज्यूम करते हैं। और ऐसे ही ऑफिस में हर 1 घंटे बाद हम 1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें 1 मिनट के लिए म्यूजिक प्ले होता है आफ्टर एवरी 59 मिनट्स। फिर म्यूजिक में हम पॉज करते हैं जो भी काम कर रहे हैं, अपने थॉट्स का जो ट्रैफिक चल रहा है उसको 1 मिनट के लिए चेक करते हैं कि क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करते हैं और फिर शिफ्ट करते हैं। अगर कुछ गलत चल रहा है तो कंपेयर करते हैं कि जो परमात्मा ने सुबह सिखाया था क्या वही चल रहा है, कुछ हम पाथ से डेविएट हो गए। फिर वापस आकर फिर 59 मिनट्स अपने कर्म में जाते हैं, ताकि कर्मों में वो परफेक्शन, वो डिविनिटी रेडिएट हो। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं। ऑफिस अराउंड 5:30 to 6 PM ऑफ होता है। फिर घर जाकर थोड़ा फ्रेशन अप होकर 7 to 7:30 PM हम सब अपने अपने घर में मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम नेचर को प्योरीफाई करने के लिए, बाकी जो जितनी भी सोल्स आज दुनिया में दुख तकलीफ में है, उन सबको हीलिंग वाइब्रेशन सेंड करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वर्ल्ड की रेज करने के लिए। उसके बाद ये ब्रह्मा कुमारिस में सिखाया जाता है, तो हम सब वही फॉलो करते हैं। उसके बाद हम अपना जो सात्विक डिनर है, कुक्ड मील, वो लेते हैं 7:30, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और रात को परमात्मा को पूरे दिन का चार्ट देकर, जिसको हम पोता मील कहते हैं, कि आज मेरे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस की क्वालिटी ऐसी थी, ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था। फिर प्रोग्रामिंग करते हैं कि कल जब ये सीन आएगा ना तो हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और अपना चित्त एकदम क्लीन करके, सब कुछ परमात्मा को अच्छा बुरा सरेंडर करके, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके सो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट अ डे ऑफ एन एसपी मेंबर लुक्स लाइक। My God, this is so inspirational. I'm actually speechless. कितने beautifully आपने अपना पूरा दिन का दिनचर्या बताया, and there is such a deep spiritual foundation to everything that you are doing. It is coming from such a deep space of inner awareness and this constant desire to become better, to improve our own thoughts in order to become this instrument of God. So we are only the instrument and the work is divine. So through Very us, true. we are only making ourselves in such a way that through us, God can do His work. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राधिका जी। इनफैक्ट जितने भी हमें लिसनर्स अभी सुन रहे हैं, मैं उन सबको ये कन्वे करना चाहूंगी कि सात्विक लाइफस्टाइल एंड स्पिरिचुअलिटी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब हम इनमें से कुछ एक भी फॉलो करते हैं, हमारे लिए दूसरा फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप जो भी हमारे साथ आज कनेक्टेड हैं, हमें आज सुन रहे हैं, आप प्लीज प्लीज अपनी लाइफ में 2 डिसीजन जरूर लीजिए। एक तो खुद और अपने सभी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सबको सात्विक मूवमेंट की हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप जरूर अटेंड करवाइए। इट हैज चेंज्ड अवर लाइफ, इट हैज चेंज्ड अवर दृष्टिकोण टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग। तो वो बहुत जरूरी है। हमारी इतनी डिजीजेस हील हुई हैं और हम सच में वो लिविंग प्रैक्टिकल प्रूफ बनना चाहते हैं, जो सबको एकदम शाउट करके कहे कि गो एंड ट्राई, ये सच में काम करता है। एंड सेकेंडली, आप सब 7 days फ्री राजयोगा मेडिटेशन कोर्स जरूर अटेंड कीजिए। आप सपोर्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7087089000 पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट वो करने के बाद आपके लिए सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना, जो आपकी चाय की क्रेविंग्स है, कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग्स है, वो बहुत इजीली आपको कॉन्कर करना आ जाएगा। प्लीज डू इट। तो ये 2 डिसीजंस आप सब जरूर लेके जाइए आज। So when you talk about this Raja Yoga meditation, can you give us a little bit of insight as to what the program looks like for 7 days? So if somebody is watching right now and they want to enroll, what are the things that they can expect?
राइट राधिका जी, तो राजयोगा मेडिटेशन क्या फर्क है कि आज बाहर दुनिया में बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, बट व्हेन वी कॉल इट राजयोगा, जो राजयोगा वर्ड है ये स्पेसिफिकली इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि इस मेडिटेशन टेक्निक में पहला जो हमारा कनेक्शन है वो सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ जुड़ रहा है, मतलब डायरेक्ट परमपिता परमात्मा के साथ, जो कि सुप्रीम सोल पॉइंट ऑफ लाइट है, जो कि हर रिलीजन में मान्य है। ऐसा नहीं है ये कुछ हिंदुइज्म से कनेक्टेड है या सिखिज्म से कनेक्टेड है, इट्स फॉर सोल्स, इट्स फॉर स्पिरिचुअल लेवल, नॉट एट द रिलीजन लेवल। तो ये सबके लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड। आप कहीं पे भी हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी कंट्री में हो सकते हो, इट इज फॉर यू। सेकेंडली, इसे राजयोगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने की विधि भी सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हम खुद को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र आत्मा, परमात्मा की संतान समझकर उन्हें याद करते हैं। तो हम खुद को भी एलिवेट करते हैं, हम ये स्वमान में स्थित होते हैं कि वाओ, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। वो इटसेल्फ इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग है। तो इसमें हम अपने स्टेटस को, अपने सेल्फ एस्टीम को रेज करते हैं। तो जब हमें याद रहता है मैं किसका बच्चा हूँ, तो हमें ये याद रहता है मुझे कैसे का काम करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैमिली आई बिलोंग टू। तो तीसरा, इसे राजयोगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हम अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उन पे राज्य करना सीखते हैं। इट बिकम्स वेरी इजी टू कॉन्कर आवर क्रेविंग्स। ऐसा क्या हमने आज मेजोरिटी देखा है कि इनफैक्ट सात्विक लाइफस्टाइल की जो सारी वर्कशॉप्स अटेंड भी कर चुके हैं लोग, ज्ञान सबको समझ में आ गया है, बट क्या है वो करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा। कहते हैं कि हमसे ये चीज छूटती नहीं है, ऐसा होता नहीं है, तो इसको कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस। आज ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है, इसको ओवरकम करने में राजयोगा मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू टू थिंक राइट, टू चूज राइट एंड टू डू राइट। तो जो 7 डेज कोर्स है, उसमें सबसे पहले हम एक्चुअल में कौन है, हमारा एक्चुअल हायर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। देन हु इज एक्चुअली गॉड, और मेरा उनसे क्या कनेक्शन है, क्या वो बहुत दूर है, या उन्हें मिलना, उन्हें फील करना सच में पॉसिबल है, क्या लगता है गॉड को एक्सपीरियंस करना, कैसी लाइफ होगी उनके साथ जीना, ये सिखाया जाता है। तीसरा, राजयोगा मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई जाती है जो बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी के लिए, और ये कर्म योग की टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि आपको घर बार छोड़ के कहीं जाके प्रैक्टिस करना है, नहीं, आपको अपनी क्वालिटी ऑफ एक्शंस को कैसे रेज करना है, ये सिखाया जाता है। फिर इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा में हायर लेवल पर जो इतने युगास हैं, उनकी क्या कहानी है, हमारे पिछले जन्मों की, हमारे आने वाले जन्मों की क्या स्टोरी है, आई द सोल एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, मुझे मेरी पूरी स्टोरी पता लगती है फ्रॉम परमात्मा डायरेक्टली। और उसके बाद हम ये सीखते हैं कि कैसे हमें 8 जो पावर्स है स्पिरिचुअलिटी की, वो अपने अंदर इंकलकेट करके अपनी हर डायमेंशन, जैसे एक आत्मा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसका मन, उसका तन, उसका धन और उसका जन, मतलब उसके रिलेशनशिप्स, तो इन चारों को कैसे प्योरीफाई करना है थ्रू परमात्मा's हेल्प, वो इस कोर्स में सिखाया जाता है, ताकि आप बहुत ही अच्छी अपनी डेस्टिनी शेप कर सके फ्यूचर में। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। I'm extremely motivated to join the course, मनीषा जी। मेरी बहुत इच्छा है, आपने इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर जो यहाँ देख रहे हैं उन सबके मन में ये इच्छा जागृत हुई है कि ये कोर्स तो अटेंड करना ही है। एक बार फिर आप बताएंगे हाउ कैन वी इनरोल फॉर दिस प्रोग्राम? जी, आप सब व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 708-708-9000। अभी कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी सतोप्रधान टीम मेंबर कनेक्टेड है तो वो कमेंट सेक्शन में ये नंबर एक बार टाइप करके भेज दें। आप यहाँ पर सिंपली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सिंपल ऑनलाइन सा मॉड्यूल है, जैसा भी आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो, आपसे प्रेफरेंस पूछकर आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर होम। And it's absolutely free and will always be. Yes. They can follow you on Instagram also. हाँ जी, इंस्टाग्राम पे satopradhan.vision हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। वहां पे हम रेगुलरली जो रिसोर्सेज के अपडेट्स हैं वो शेयर करते रहते हैं। Very nice, very nice. Thank you, Monisha ji, for being with us, for sharing so openly, for bringing so much positivity into our day, into our lives, and just being in your presence is enlightening for all of us. You brought so much happiness to us. Same here. ये जो भी है ये आपसे रेडिएट होकर आ रहा है, तो वो म्यूचुअली एनहांस हो रहा है और सब लोगों तक जा रहा है। So this is so beautiful. मुझे लगता है कि जब हम हाथ में हाथ मिला के, और मैं एक सभी को ये भी कहना चाहूंगी कि सात्विक मूवमेंट का हमने ये देखा है कि इतना ब्यूटीफुल इनका जो इंटेंशन है वो सच में सर्विस का है। सुभा जी और हर्ष जी, मुझे याद है हम छोटी सी भी कोई कोशिश करते हैं जो उनको लगता है कि सच में कम्युनिटी को हेल्प कर सकती है, तो वो इतनी दिल जान से हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं लोगों के सामने लाने की।
मतलब कहीं पे भी कंपटीशन या वो चीज तो जहन में है ही नहीं। और मुझे लगता है यही अगर हम ट्रू कोऑपरेशन वाला भाव रख के हैंड इन हैंड ऐसे ही काम करते रहेंगे, द डे इज नॉट फार जब हम सत्यों को रियलिटी बना के ही छोड़ेंगे। Yes, we are all seeing the same dream of a sattvic world. जी So we will close the session with a Hare Krishna Mahamantra. आप जी लोग राधिका सब जिन भी भगवान में विश्वास रखते हैं इस समय उन्हें मन से थैंक यू बोलिए and receive all of this that we have learned today. Maybe apply it in our lives. Maybe have an open heart and open mind to receive and truly become instruments of God. Please join me in this prayer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you everyone for joining us. Lots and Thank lots you of so love. much. Keep practicing. Lots of love to everybody watching. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Shanti. Om Shanti.